friends, I'm Poonam Vadgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to finish our chapter, that is water, and this is our third lecture for the water, where we are going to cover hard and soft water, how to remove the permanent and the temporary hardness of water, and scarcity of water and conservation of water, or why there is a need to conserve the water, right? First of all, we have hard water and soft water. Hard water contains the salts of calcium and magnesium, where the calcium and magnesium are present in the form of bicarb. Okay, calcium and magnesium salts are there in the hard water, and the soft water do not contain the such salts, right? And the hard water will not form lather, and whereas the soap will form, this soft water will form lather with the soap, झाग टाइप ऑफ द थिंग। जैसे कि मैंने डायग्राम में नीचे आपको दिखा रखा है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सोप इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ द हार्ड वाटर। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज हार्ड वाटर कैन बी यूज विद द सोप्स। ये बोला जाता है क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया गया था कि ये सोप्स के साथ बेटा यूज नहीं होता है, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली नहीं ही होता है। अगर सोप यूज भी करोगे तो लॉट्स ऑफ सोप यू नीडेड। ये हार्ड वाटर सिर्फ डिटर्जेंट्स में काम करता है। वाई? तो मैंने आपको रीजन बताया था सोप के साथ ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है बेटा, स्कब का। that is the insoluble substance will get formed in the hard water when the soap is mixed with it. Now we are going to cover the hardness of the water. It's divided into two parts. First of all, the temporary hardness of water. Second is the permanent hardness of water, right? This is the temporary hardness of water. This is temporary hardness of water, and this is the permanent hardness of water. I told you in the last lecture also that the temporary hardness of water can be, it is because of the calcium and magnesium bicarbonates, and the permanent hardness of water is by their chlorides, by their nitrites, by their nitrate, sulfate and calcium magnesium sulfate कह सकते हो, calcium magnesium nitrate कह सकते हो, and calcium magnesium chlorides कह सकते हो, right? This is all about your hardness of water, where we have divided into two parts, temporary and permanent. तो मैंने दोनों का बता दिया बेटा। एक तो कार्बोनेटेड है और दूसरा क्या है, नॉन कार्बोनेटेड है। कार्बोनेटेड में बाइकार्बोनेट्स वाले जो सॉल्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरे वाले इज नोन एज द परमानेंट हार्डनेस। अब मुझे टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज बाय डूइंग हीटिंग, और यू कैन से बॉइल करके। तो आप इसको बॉइल करोगे तो व्हाट विल हैपन, calcium hydrogen carbonate will decompose into calcium carbonate plus carbon dioxide plus water, and यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि calcium carbonate जो है precipitate बना रहा है। Similarly magnesium carbonate भी precipitate बना रहा है। This can be magnesium carbonate also or magnesium hydroxides also, दोनों में से कुछ भी बन सकता है, राइट? अब what these insoluble carbonates are removed by filtration। मैं क्या करती हूँ बेटा, एक यूटेंसिल में टैप वाटर लेती हूँ जिसे मैं हीट करती हूँ। इसमें कई सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो कि मुझे विजिबल भी नहीं है, तो मैं इसे क्या करती हूँ बेटा, हीट करती हूँ ऑन द गैस स्टोव। अगर मैं इसे हीट करती हूँ तो व्हाट विल हैपन, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, पानी को थोड़ा ठंडा हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, आई टेक द फनल, फनल में बेटा फिल्टर पेपर लगा दूंगी। इफ यू आर यूजिंग एट होम दिस मेथड, तो मैं किसी कपड़े से भी इसे छान सकती हूँ। इफ आई एम डूइंग दिस इन द लेबोरेटरी, तो मैं क्या करूंगी बेटा, यहाँ पे इधर पे फिल्टर पेपर लगाऊंगी इस फनल पे, और नीचे एक बीकर रखूंगी। फिल्टर पेपर को होल्ड करने के लिए आई नीड अ ट्राइपॉड स्टैंड। यू नो दैट ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड लूंगी, और what will happen, this water will transferred into over here। what will happen कि यहाँ पे क्लियर वाटर यहाँ पे आ जाएगा,
you will find this is known as the filtrate। और जो टिश्यू ये फिल्टर पेपर के ऊपर जो आएगा चीज उसे कहा जाएगा बेटा रेजिड्यू। अब वो जो रेजिड्यू होंगे वो रेजिड्यू किसके होंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है वो, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बल्कि दोनों ही प्रेजेंट होंगे बिकॉज हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स ही तो होते हैं ना। तो ये दोनों यहाँ पे प्रेसिपिटाइट आउट हो गए, वाटर नीचे निकल गया, CO2 गैस बन के उड़ गई। You will find the pure water as a filtrate and residue as calcium magnesium के carbonates, ठीक है। Now this नीचे वाला filtrate वाला water is the potable water, you can drink it आराम से। Right now, we have the permanent hardness of water is not there in your Pearson textbook. Still, you have to do this thing. This is very easy, right? Why? Because for your higher examination, this is important. So I am discussing this topic is also with you guys, right? That is basically permanent hardness of water. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में तुम्हारी बुक में बेटा एक भी रिएक्शंस नहीं गिवन है, तो आपको रिएक्शन के साथ में याद करना है, और आपको पता ही है कि रिएक्शंस कैसे लिखी जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर मैं बात करती हूँ कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द क्लोराइड सल्फेट एंड नाइट्रेट्स ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मोस्टली होते हैं बट समटाइम्स आयरन इज ऑल्सो देयर अलोंग विद दैट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दिस इज योर बीकर इज शोन ओवर हेयर। यहाँ पे बेटा तुम्हें ये बीकर दिखाया हुआ है जिसके अंदर में हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर है तो वो सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता है कि इसके अंदर में कैल्शियम क्लोराइड है, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ हार्ड वाटर। अब इसके अंदर क्या डालोगे बेटा, सोडियम कार्बोनेट डालोगे। सोडियम कार्बोनेट का रोल क्या है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड पानी में सल्यूबल है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि वो प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट का बनने का मतलब है कि कुछ इनसल्यूबल टाइप ऑफ द सब्सटेंस बन जाए, सो दैट कि मैं फिल्टर करके उसे सेपरेट आउट कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, उसके अंदर में वॉशिंग सोडा डालूंगी। वॉशिंग सोडा इज नथिंग बट द सोडियम कार्बोनेट। See, once you are reading with the water chapter, but you are also getting the name of the salts like baking soda का आपने chemical name पढ़ लिया। अब washing soda का आपने chemical name पढ़ लिया, that the sodium carbonate is the washing soda। इसके अंदर बेटा washing soda डालूंगी, what will happen? कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, तो व्हाट विल हैपन, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट अगेन प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये तो मेरे लिए कोई हार्मफुल है नहीं इसमें। और ये कैल्शियम कार्बोनेट मैं क्या करूंगी, फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट करूंगी, and you will get pure water, right? Now स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का मतलब है पानी की कमी होना। अब व्हाई द वाटर इज लेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट एंड द सेकंड लेक्चर that we have a limited amount of water on the earth which is potable, right? पीने के लिए बेटा मीठा पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमें उसे बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, सो दैट हम लोग भी आज पिए एंड कमिंग जनरेशन विल ऑल्सो गेट द यूज ऑफ वाटर। कहीं उन्हें सिर्फ नहाने के लिए 2-3 बूंद छिड़कना ना पड़े पानी, ठीक है। तो हमें पानी का ऐसा यूज करना है कि हम लोग अपने लिए सफिशिएंट यूज करें, so that we will save the water for the coming generation also. That is basically the sustainable development. What do you mean by sustainable development is use of the fuels, fossil fuels, or you can say ki anything for the coming for this generation and preserve it for the coming generation। आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो चीज संभाल के रखे, that is known as the sustainable development। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वाटर। वाटर स्कैरिसिटी उसने खुद बता दिया, इज रिड्यूस और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द यूजेबल वाटर और द वाटर रिसोर्सेज, राइट? इट अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल डायरेक्टली। अब वो एनिमल में बेटा हम लोग भी आ सकते हैं, ह्यूमंस को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे।
plants को भी फर्क पड़ेगा. Why? Because if the plants are not getting the water in a sufficient amount, they won't give you the fruits, they won't grow properly, they won't give you fruits. तो छोड़ दो, हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा अगर वो लोग मर गए तो. If they will die in certain period of time, तो हम लोगों की भी मरना कोई बहुत दिनों तक नहीं लिखा हुआ. Because we need oxygen, plants are giving oxygen. Animals also needs the water in a sufficient amount, right? Crops like paddy, sugarcanes need a lots of water. बहुत ज्यादा लगता है. चावल, पैडी इज बेसिकली द राइस की खेती कह सकते हो आप. यू कैन से कि चावल की खेती, शुगर केन यू नो दैट गन्ने की खेती है. इन दोनों फसलों को बेटा बहुत ज्यादा पानी लगता है. ठीक है. कॉजेज ऑफ स्कैरिसिटी की अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द कॉजेज विच आर बेसिकली कि पानी की कमी जिनके कारण हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन की. और जनरेशन क्या, पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं. पॉपुलेशन मींस डे बाय डे द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट विल हैपन, दे विल, देयर नीड्स आर आल्सो इंक्रीजिंग. उनको और ज्यादा पानी चाहिए अपनी यूटिलाइजेशन के लिए. बट हमारे पास तो इतना ही सोर्स है जितना पहले था, राइट? हमारे पास तो पानी कहीं मार्स या फिर वीनस से तो नहीं आया है. पानी तो उतना ही था. जनरल पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, नीड्स बढ़ेगी. नीड्स बढ़ेगी तो और उनको सोर्सेज, रिसोर्सेज और चाहिए तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे धीरे धीरे विद द टाइम, वो टाइम के साथ कम होते जाएंगे, right? Population increases, more and water will be consumed. Large amount of obstructed from the infiltration of the water, building or construction. अब देखो, मैं अगर बात कर रही थी पॉपुलेशन में, मैं तो सिर्फ इंसानों की बात कर रही थी, राइट? अब अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ही देखो उनकी डिमांड्स बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शंस बढ़ेंगे, बिल्डिंग्स बढ़ेंगे. व्हाट विल हैपन टू द वाटर टेबल और डिक्रीज हो जाएगा, राइट? क्योंकि हम लोग पानी तो जमीन में से निकालेंगे या फिर नदी या फिर लेक्स अगर नियर बाय नहीं है तो ग्राउंड वाटर को ही यूज करेंगे. तो बेटा उसके कारण क्या हो जाएगा, वाटर टेबल का लेवल और डिक्रीज हो जाएगा, राइट? एंड इसके कारण क्या होगा, रिड्यूस द रेनफॉल एंड इंक्रीज द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिमांड्स बढ़ेगी, पेड़ों की कटाई होगी, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा. रेनफॉल डिक्रीज हो गया, वाटर हमने कंजर्व नहीं किया, तो बेसिकली पूरा का पूरा तो गया है. धरती तो पूरी जा ही रही है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन है. फिर उसके बाद ट्रीज कट हो रही है, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, तो ट्रीज कट होंगे. फिर फॉरेस्ट कट हो जाएंगे. व्हाट विल हैपन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, पानी ना ग्राउंड पे है, ना ग्राउंड वाटर में है, ना अंडरग्राउंड में है, कहीं पे भी नहीं है पानी, राइट? नाउ इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन है. अगर मैं बात करती हूँ इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन की, तो इंडस्ट्रीज आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर. अगर तुम देखोगे किसी भी इंडस्ट्री में तो वाटर एक वेरी लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है. बेशक वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को बनाने के लिए वाटर नहीं चाहिए, बट इफ समथिंग इज हैपेंड इन दैट इंडस्ट्री दे विल कलेक्ट द वाटर सो दैट कि हम लोग उस वाटर स्प्रे करके वो कम से कम इंसिडेंट को बचा सकते हैं. तो बहुत सारा पानी एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को चाहिए होता है, राइट? Industries and construction work use a lot of water, leading the scarcity of water. Groundwater and water from the aquifer are over exploited for various uses. ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है अधिक से अधिक ज्यादा मात्रा में ये सब चीजें यूज हो रही है. ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है, वाटर टेबल, एक्वीफायर. एक्वीफायर में मतलब एक्वीफायर क्या था, वो जो पानी धरती के नीचे प्रेजेंट है वो. Population by the industries and the domestic sources makes the quality of the water poor. अब देखो एक और चीज की हम लोग बात कर लेते हैं. जैसे हमारे घर से you have HAL, we are staying in the HAL. Whatever be the waste is going from the, you can say from the toilet, from the bathroom, from the kitchen, water waste I am talking about. This all is going into certain water body. If it is not uh, हम लोग अगर इस पानी को रीयूज ना कर रहे हो तो इट इज गोइंग सर्टेन इन समवेयर, राइट?
somewhere in the river, somewhere in the ground. If it is going into the ground तो ये ground water को pollute कर रहा है. If it is going into the river body तो it is basically damaging the river body. Aquatic life are also getting affected by this, and the quality of the water is becoming poor and poor, and इतना poor हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते. If you see the water, यमुना river, आप बिफोर, मतलब आप देख लो कि आज से 10 20 30, यू कैन से कि 40 50 ईयर्स, या फिर आप 30 ईयर्स तक ही देख लो कि यमुना का पानी का क्लैरिटी क्या था. नाउ डेज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द यमुना रिवर? ब्लैक हो चुकी है, बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुकी है, राइट? बिकॉज सारा का सारा जितना भी दिल्ली के मथुरा, यूपी, जितना भी पोल्यूशन आ रहा है, सारा का सारा कहाँ जा रहा है? इज गोइंग इनटू द यमुना, एंड द वाटर क्वालिटी ऑफ द यमुना इज डे बाय डे गोइंग टू बी वर्स्ट एंड वर्स्ट होती जा रही है, राइट? Now we are proceeding further. In many parts of the country, groundwater is the only source of the water for the irrigation. Irrigation का मतलब है खेती वेती करने के लिए. The continuous use of the this water, ground water, what will happen? The water table क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा? एक दिन तो पानी की कमी आनी ही आनी है in the underground water also, ground water also, right? Now we are discussing with the global warming has resulted in the change of the season in the many parts of the, this will decrease the rainfall over many areas. कहीं कहीं पे तो अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में तो बेटा फ्लड ही आता रहता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर देयर वेयर देयर नो रेनफॉल. यू कैन सी कि 2 3 सालों से बारिश ही नहीं हुई है. अगर बारिश ही नहीं हुई है तो वहां पे बेटा व्हाट विल हैपन? पानी की कमी हो गई है, पानी की कमी होगी, एनिमल्स गॉट अफेक्टेड, प्लांट्स गॉट अफेक्टेड, ह्यूमंस गॉट अफेक्टेड. एनिमल एंड प्लांट्स they can't go anywhere traveling long distances. Human तो फिर भी वहां से भाग के go to the some other places, but some of the humans are there which are also staying there, right? So बेटा सबको पानी की कमी होती है, right? Deforestation is one of the reason. How we can see, देखो deforestation के कारण क्या होगा? If all the forest got cut by for the human or some other purposes, तो what will happen? वहां पे लैंड क्या हो जाएंगे? नेकेड लैंड्स हो जाएंगे. वहां पे कोई फसल नहीं है, वहां पे कोई पेड़ नहीं है. what will happen? If the rain falls, what will happen? सारा का सारा पानी बेटा एक ही साथ बह जाएगा, और एक साथ बहने के कारण क्या होगा? जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, विच इज द फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, वो भी अपने साथ वो पानी ले जाएगा. एंड व्हाट विल हैपन? वहां के एरिया में क्या हो जाएगा बेटा? सॉइल इरोजन हो सकता है, और that area is not now not useful for anything. ना वहां पे पेड़ उग सकते हैं. क्यों नहीं उग सकते? बिकॉज टॉप लेयर जो फर्टाइल लेयर थी वो तो ले गई, रेन तो अपने साथ ले गई ना. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है परकोलेटिंग. परकोलेटिंग का मतलब क्या है? अगर रेन वाटर धरती पे गिरता है, विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल स्मॉल पोर्स इट इज गोइंग इनटू द ग्राउंड वाटर. That thing also not happening in the bare soil. मतलब जो ये सॉइल है ना, खाली सॉइल, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो, this soil is known as the bare soil where no plants, no crop, nothing is there. तो वहां से बेटा सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर will flow along with your rain water, and वहां से वो सॉइल इरोजन हो जाएगा, पहली चीज. and the percolating is also not occurring over there कि पानी रुक के सीविंग हो जाएगा, पानी का नीचे चले जाएगा, तो वैसा भी कुछ हो नहीं रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट की जहां पे हम लोग पानी को खो रहे हैं. ठीक है, these are the some definition. You have to define a spring saturation zone, infiltration, groundwater, hard water, right? Conservation of water है. अब आपने ये सब चीजें देख ली. अगर वैसी कंडीशन रही तो कुछ सालों में ही पानी खत्म हो जाएगा. आज की जनरेशन भी पानी को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी. हम लोग कल की तो छोड़ ही देते हैं कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा. आज की जनरेशन भी पानी यूज नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी हमारे पास समस्या आ जाएगी. वी विल हैव द मनी बट वी डोंट हैव द पानी. तो तुम लोग पैसों से भी कुछ खरीद नहीं पाओगे, याद है?
अब बात करते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। मोस्ट अब कंजर्वेशन में क्या होता है कि हम लोग एक तो पानी को कंजर्व करके रख ले, तो जो हमारे पास फ्री का पानी आ रहा है दैट इज बेसिकली द रेन वाटर, दैट वाटर वी कैन हार्वेस्ट और दैट वाटर कैन बी कंजर्व। इफ यू सी द पिक्चर ओवर हेयर, यहाँ पे देखो, इफ यू सी द पिक्चर ओवर हेयर यू विल फाइंड कि एक घर बना हुआ है बेटा। घर के ऊपर देखो, अब बारिश होगी तो बारिश का पानी छत के ऊपर इकट्ठा होगा। दैट वाटर फ्रॉम द दिस पाइप्स विल गो इनटू सम टैंक, और वो टैंक में थोड़ा बहुत फिल्टर विल्टर का लगा रखा होगा इन लोगों ने कि फिल्टर हो जाएगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स एंड स्टोन्स फिल्टर होके देन इट विल कलेक्टेड समवेयर इन द large tank, right? One of the word is overused over here, that is बावरी। दिस बावरी और स्टेप वेल हम लोग कह सकते हैं। एशियन टाइम्स में दे हैव वेरी ग्रेट माइंड्स व्हाट द, यहाँ पे इफ यू सी अ बावरी इज देयर, यहाँ पे क्या होता था बेटा, जितना भी पानी आ रहा है ये सारा का सारा पानी एक जगह इकट्ठा होगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाया करता था। ये पानी फर्दर they can be used for another use also, right? This is a free cost water है। रेन वाटर के लिए हमें कोई पैसा तो लगाना नहीं है, भगवान को पैसा तो देना नहीं है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिला उसे कलेक्ट किया, they can be used again and again for any other purposes. These are the deep wells or ponds. Access to the water is made by the stepwise construction. यहाँ पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि सीढ़ियों से स्टेप वाइज में इस वाटर तक हम लोग पहुंच सकते हैं, राइट? नाउ वी आर गोइंग फर्दर वेयर दिस इज, आई हैव शोन द पिक्चर फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज हैपनिंग, बारिश हो रही है, बारिश का पानी बेटा यहाँ पे क्या होगा, बारिश का पानी सारा का सारा इस रूफ में कलेक्ट होगा। दिस पाइप इज कनेक्टेड विद द रूफ और इस पाइप से इसमें जाएगा। दिस इज द फिल्टर चेम्बर, जहां पे बड़े बड़े जो कचरा पत्ते वत्ते है वो सारा का सारा filter out हो जाएगा। what will happen, this water goes over here if it is filled fully then one of the open well is there जहां पे और ज्यादा हम लोग स्टोर कर सकते हैं वाटर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, ये पानी धीरे धीरे तुम्हारे सीव भी अगर होता रहेगा तो ये प्लांट्स को भी मिलता रहेगा, उनकी भी ग्रोथ हो रही है और तुम्हारा पानी भी कंजर्व हो रहा है, हमें पेड़ों को पानी देने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, राइट? एंड इससे क्या होगा बेटा, दिस वाटर कैन बी यूज फॉर कार वॉशिंग, दिस कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग, दिस कैन बी यूज फॉर क्लोथ वॉशिंग एंड यूटेंसिल वॉशिंग। और अगर फिल्टर आउट करके पी सके तो ये पानी ड्रिंकिंग के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है? दिस इज अनदर होम आई हैव शोन वेयर, इसने क्या किया है बेटा, वी शेप में अपने रूफ बनाए हैं, जितना भी पानी आ रहा है पाइपों से कलेक्ट कर रखा है एंड इसने देखो बहुत अच्छे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को शो किया है। कार वॉश गार्डन के लिए और गार्डन के लिए, और इसने यहाँ पे भर दिया है पंप आउट करके वाटर एक बड़े टैंक में भी कलेक्ट कर लिया है, राइट? Now we have one more example of your बावरी। अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा तो यहाँ पे सीढ़ियाँ कई सारी बनी हुई है। The people will go from the excess of this water is by the stepwise step and this water is collected with the help of the rain only. All the rain water will collect over here and this water can be used for the further uses like whatever they want to you go, and the excess of the water is by with the help of the stepwise, right? Now what we can do for the conservation of the water, right? First of all, if you see a drip irrigation system is there, जहाँ पे most of the pipe इसने use किए हुए हैं and the pipe is not using the water very large for the crop, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी बेटा यूज होता रहता है, जैसे ड्रिप होता रहता है थोड़ा थोड़ा पानी, when it is required तो वो पानी उस पाइप में है, धीरे धीरे वो फसल को मिलता रहता है, राइट? We can also use the afforestation. What do you mean by afforestation? Deforestation का मतलब है कि फॉरेस्ट हटी गए, afforestation का मतलब है कि फॉरेस्ट को लगाना, राइट? मतलब फॉरेस्ट बहुत सारे ट्रीज आप लगाओ। Planting trees especially on the slope of the hill mountain helps to decrease the speed of the water flow and enhance infiltration known as
Afforestation. People treatment and recycling wastewater from industries help to regain the quality and make it fit for human consumption. What will happen? Whatever be the water collected, they are undergoing the proper treatment and the recycling of the water. जैसे कि HAL में one of the system is there. If you see बड़े बड़े tanks लगे हुए हैं जिसमें water purification होता है, right? This is now, if they are properly treated, they are properly recycled and purified. This is fit for human consumption. Dams also we can use. Dams में क्या होता है बेटा? Water we are dams में what is happening? डैम्स में व्हाट इज हैपनिंग डैम्स में बेटा पानी कलेक्ट कर लो आप पानी अगर कलेक्ट कर लोगे तो व्हाट विल हैपन रेन वाटर भी वहां पे कलेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द रिवर और वहां पे फिशिंग भी कर सकते हैं तो एक बिजनेस के साथ में दूसरा बिजनेस भी हो गया एक तो पानी कंजर्व हो गया फॉर द फर्दर यूज दूसरा फिशिंग भी हो गई सो दैट फिश कैन बी ईट बाय ईट ओके ऑब्वियसली बात है फिशेस को ईट कर सकते हैं हम लोग वी कैन स्टार्ट वाटर कंजर्वेशन फ्रॉम द होम ऑल्सो जैसे मैंने आपको दिखा दिया टैप्स अब देखो एक तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने दिखा दी एक तो वाटर कंजर्वेशन एट होम हम लोग कर सकते हैं एक तो टैप्स दैट आर लीक शुड बी रिपेयर्ड एंड रिप्लेस्ड जो टैप रिपेयर कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं जो मतलब यू कैन से कि जिनमें से पानी गिरता रहता है अनकंडीशनली उन टैप्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं रिपेयर कर सकते हैं वी शुड क्लोज दैम इमीडिएटली आफ्टर यूज जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है व्हाइल ब्रशिंग we should not use the tap continuously while you when it is required then it is used right and conservation of water is very important because water is becoming the scarcer in the contemporary world right so we need to conserve water or we need to conserve the resources and conserve the things for the coming generation and for the use the things very judiciously for the this generation and conserve them for the coming generation so that everybody can use that thing right now here is the activity which is the very good activity I have seen the role of a student in the conservation of water this is we have to do the debate right so this is when our Monday is our class right Monday is our Zoom session, right? So, guys, we on Monday we are going to do this activity on the Zoom, where debate of the student or conservation of water. We are going role of student for conservation of water. We are going to discuss, right? So, be ready for the debate, and we are discussing the questions of your this MOT and along with this thing, this activity we will do, right? Okay, these are some questions you have to answer and please write up, complete your notes for the water and very few questions are there in the checkpoints. Complete that and submit your homework. Okay.